Dear students, a very good morning to all of you and a very warm welcome to your maths classes. I hope that you all are enjoying the weather. Along with that, I hope that you all have started studying seriously, because very soon I'll have a test, a class test, in which I'll send you the paper and I will ask you to solve those questions in your fair copy in a given limited time. Obviously, I'll not be there in that time, but I suppose that you will finish the test within that period of time. And when we meet, or whenever your copies are being asked to check, then you will be submitting your copies on that day, and then I will be checking your test. So just try to solve the test in that time only and start studying properly. Now this is the project work of maths. 4 मैथमेटिशियन के नाम है, जिसमें से कोई 2 मैथमेटिशियन के बारे में आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है. ध्यान रखेंगे कि कॉपी में साफ से सुंदर से लिखेंगे. इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं वो चैप्टर 2 के कंप्लीट होने के बाद इसको लिखेंगे. हर एक टॉपिक पे आपको 2 पेज लिखना है. दैट इज यू ऑल हैव टू राइट टोटल 4 पेजेस. योर प्रोजेक्ट वर्क इज ऑफ टोटल 4 पेजेस. So this is all about the project work. Now do not ask any unnecessary question, any silly question regarding this project work, as I have explained everything that you all have to write in your copy regarding this. तो आज के लेक्चर से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, दैट इज फ्रैक्शंस. अब नेक्स्ट वीक आपकी फिर से एक गूगल मीट होगी, जिसमें कि चैप्टर 1, 2 और चैप्टर 3 में हमने जो भी चीजें आज पढ़ी हैं उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप उसको पूछेंगे. ठीक है, तो हम चैप्टर 3 फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं. जब भी हम फ्रैक्शन कहते हैं तो हमें एक सिंपल सी चीज है जो समझ में आती है, क्या कि हमारे पास एक डिवाइड का सिंबल होगा और जो ऊपर में नंबर लिखा होगा दैट इज नोन एज न्यूमरेटर, और जो नीचे में नंबर लिखा रहता है दैट इज नोन एज डिनोमिनेटर. ठीक है, fraction, whenever we talk about the representation of fraction, then we have such kind of number. इस तरीके का जो फिगर है वो दिमाग में आता है, like 2/3 या फिर 7/5 ऐसे करके. अब इसमें जो डिवीजन के सिंबल के ऊपर में जो नंबर लिखा है दैट इज द न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा है दैट इज डिनोमिनेटर. नाउ बेसिक थिंग्स अबाउट फ्रैक्शन you all have studied in your class 6th. So we are going to start with various type of fraction that we will be studying in this chapter. The first one is like fractions. The fractions which have same denominator are called like fractions. For example, let us consider some fractions, say 2/3. For this, we're going to consider the example, see 2/3, 8/3, 4/3, 5/3 and so on. In all these fractions, the denominator is same. So these are like fractions. Similarly, 2/7, 5/7, 18/7 and so on. These are also like fractions. So what are like fractions? The fractions having same denominator. Next is unlike fraction. So as the name suggests, unlike fractions are the fractions which have different denominator, like 2/3, 5/7, 6/8. So in all these cases we have different denominators. So this is a set of unlike fraction. Similarly, the next fraction that we are going to study is unit fraction. What is it? The fraction having 1 as numerator is called unit fraction, like 1/12, 1/17, 1/19 ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं. 1/12 क्या है? यूनिट फ्रैक्शन है. क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर 1 है. सिमिलरली 1/17 इज यूनिट फ्रैक्शन बिकॉज द न्यूमरेटर इज 1. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन. यानी कि न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो छोटी होती है डिनोमिनेटर की वैल्यू से. फॉर एग्जाम्पल 2/3, 3/4, 9/10 एंड सो ऑन. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट वी विल स्टडी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. A fraction whose numerator is greater than
और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दो कंडीशन आती है कि न्यूमरेटर जो है वो या तो ग्रेटर होगा या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए न्यूमरेटर बड़ा है तो 5/2 या फिर 7/8, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा, दीज बोथ द वैल्यूज दे आर इक्वल, इन दैट केस से 7/7 और say 6/6. So these are the examples of improper fraction where the value of numerator is either greater than the denominator or it may be equal to the denominator. Now next we have mixed fraction. A fraction which can be expressed as sum of natural number and a proper fraction is called a mixed fraction. That is, जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखेंगे तो 2 होल 3/5 के फॉर्म में ऐसे करके जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 5 2 हो जाएगा 10 और 10 + 3 30। ये क्या है, जब इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्म है ये वाला। और जब भी हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे दैट इज 2 होल 3/5, देन वी कॉल इट एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी चीज को हम लिख सकते हैं क्या, 2 + 3/5। ओके, सो दीज आर द डेफिनेशंस रिगार्डिंग वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. Now we are going to see the exercises of this chapter one by one. We are going to discuss the questions. So we are going to start with exercise 3A. पिछले चैप्टर में हमने प्रोडक्ट पढ़ा है कि किस तरीके से रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। हमने उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन दैट इज प्रोडक्ट एंड डिविजन, ये सारी प्रोसेसेस हमने पढ़ी हैं। तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप क्या करना है कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया है और उसका प्रोडक्ट निकालना है, कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स. ओके, so we are going to see some of the questions from the exercise. First question is 5/6 into 3/7. So how we are going to solve this? See, product of numerator that is 5 into 3 upon 6 into 7. अब यहाँ से दो तरीके हैं. क्या, पहला तरीका है कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, और दूसरा तरीका है कि आप पहले ही सिंप्लीफाई कर लें और उसको बाद में मल्टीप्लाई करें. द सिंप्लीफिकेशन मेथड दैट वी आर यूजिंग हियर इज ऑफ डिविजन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो ध्यान से समझेंगे कि किस तरीके से करना है. ऐसे क्वेश्चंस हमने लास्ट चैप्टर में भी किए हैं, तो ये एक क्विक रिविजन होगा कि किस तरीके से हमको सिंप्लीफिकेशन करना है. तो देखते हैं, यहाँ पे 3 लिखा है, नीचे 6 लिखा है. हमें पता है 3 और 6 कॉमन टेबल में आता है 3 के, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. 5 7 कॉमन नहीं है, एक दूसरे के टेबल में नहीं आता है, तो हम वो चीज़ नहीं लिख रहे हैं. अब ऊपर क्या बचा है, 5 into 1 upon 2 into 7. That is 5 1 ज़ा 5, 2 7 ज़ा 14 and this is the answer. Similarly, we have 7/18 into 9/40. तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 into 9 upon 18 into 40. Clearly 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, और दूसरा चीज़ यहाँ 9 लिखा हुआ है, तो 9 1 ज़ा 9 and 9 2 ज़ा 18. That is 1 into 1 upon 2 into 2. That is 1/4 is the required answer. Similarly, we have question number 8 in which we have 3 terms to multiply. This one is in the mixed fraction form. कहीं पे भी अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और जो टर्म्स है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28 और +1 29. 7 whole 1/4 can be written as 29/4 multiplied by 7/58 multiplied by, here we have 21 into 1, that is 21, and then plus 11, that is 32 upon 21. तो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर लिया है.
अब जैसे हमने डिवीजन का कंसेप्ट यूज़ किया था वही चीज़ हम यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। तो ध्यान से समझेंगे कि हम कैसे, ये समझ में आ रहा है कि किस टर्म को हमें किस टर्म से कट करना है। तो 29 1 ज़ा 29, 29 2 ज़ा 58, ऐसे ही 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21 होता है। फिर हमारे पास बचा है 32 और 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। अब क्या बचा है टर्म 1 into 1 into 8. This is the part of the numerator, and in the denominator we have 1 into 2 into 3. So we have 8 upon 6. Wait 1 second. अभी देखिए यहाँ पे 8 और 2 भी है, तो यहाँ पे भी अभी हम कट कर सकते हैं। कैसे? 2 1 ज़ा 2 and 2 4 ज़ा 8. So we have 4 upon 3 and this is the required answer. तो इसी तरीके से आप जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अपनी रफ कॉपी में, प्रैक्टिस कॉपी में सॉल्व करेंगे। Now we have question number 11 from your book which says a car can travel 12 whole 1/2 kilometers in 1 liter of petrol. 1 लीटर पेट्रोल में एक कार है जो कि 12 होल 1/2 किलोमीटर्स ट्रेवल कर सकती है। आपको बताना है कि कितनी दूरी तय कर पाएगी वो कार अगर हमारे पास 42 होल 3/5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है। जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनमें हम स्टेटमेंट ज़रूर लिखेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कॉपी में भी जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उसमें स्टेटमेंट ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका स्टेटमेंट कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कितना दिया गया है 12 होल 1/2 किलोमीटर। इसको चेंज करेंगे 12 2 ज़ा 24 प्लस 1 25/2 किलोमीटर्स। आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस मच लीटर ऑफ पेट्रोल। तो हमें पता है कि अगर हम 1 लीटर में इतना चल रहे हैं तो इतने लीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास हो जाएगा 25/2 इंटू 42 होल 3/5 एंड दिस कम्स आउट टू बी 25/2 इंटू 42 इंटू 5, 210 प्लस 3, 213 अपॉन 5। यहाँ से 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब हम 213 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1065 अपॉन 2। अगर हम चाहें तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं एंड वी विल हैव द, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो 532 होल 1/2। ठीक है, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर 532 इतना। और ये क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए आपने क्वेश्चन में हमें यूनिट जो दी है वो किलोमीटर्स की दी है, तो यहाँ पे भी हम यूनिट लिखेंगे किलोमीटर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। A graphic designer charges ₹27 whole 3/5 for each diagram. Find the amount he will charge if he designs 186 diagrams for a book. See, charge for one diagram is ₹27 whole 3/5. So charge for 186 such diagrams will be 27 whole 3/5 and we will multiply it by 186. इसको सिंप्लीफाई करना आपको पता है, हम 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 135 आता है, और उसमें 3 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 138 अपॉन 5 इंटू 186। इसको 186 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, दैट विल गिव यू द फाइनल आंसर। Similarly, we have question number 14. Advertising in a magazine costs rupees इतना per square inch. एक मैगजीन है जिसमें कि अगर हम अपना कोई ऐड करना चाहते हैं, कोई प्रचार करना चाहते हैं उसमें, तो 1 स्क्वायर इंच के आर्टिकल के लिए, मतलब इतनी जगह पे कोई अगर चीज़ हमें लिखवानी है उसके लिए इतना पैसा लग रहा है।
आपको पता करना है कि हमारा जो कंटेंट है वो इतना बड़ा है 17 होल 6 बाई 7 स्क्वायर इंच का, तो कितना लगेगा, क्या कॉस्ट होगा उसका। तो कॉस्ट पर स्क्वायर इंच इज दिस मच। The cost for 17 whole 6 by 7 square inches will be 17 whole 6 by 7, and this will be multiplied by the rupees that we have given, 1472 whole 2 by 5। तो ये क्वांटिटी जो है मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले हम इस क्वांटिटी को चेंज करेंगे और फिर फाइनल आंसर निकालेंगे। दैट विल गिव यू द कॉस्ट फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ स्पेस टू बी एडवर्टाइज्ड इन दैट मैगजीन। So you're going to solve all the questions of exercise 3A in your practice copy। हमें करना क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है और जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टेटमेंट के साथ करना है। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन। तो ये चीज़ हमने लास्ट के एक्सरसाइजेस में भी डिस्कस की है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ही करेंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ 5 बाई 6 इज 6 बाई 5। इसी को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 बाई 6 इज 6 बाई 5। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस। अगेन वी हैव व्हेन वी स्टार्ट विथ डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमने लास्ट चैप्टर में किए। मान लेते हैं कि कोई दो फ्रैक्शन दिया है, पहला है a by b and the other one is c by d, and if the situation is as such कि we have to divide the fraction a by b with the fraction c by d, then what we do, first we write the first fraction, यानी a by को हमने वैसे ही लिख दिया, डिविजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और c by d का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जब हमको या तो हम ये वैल्यू फाइंड करें या तो ये वैल्यू फाइंड करें, द आंसर इज गोइंग टू बी से। तो हम डिविजन कैसे सॉल्व करते हैं, डिविजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके और जो सेकेंड टर्म है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ 13 बाई 17 कितना हो जाएगा, उल्टा करना है, 17 बाई 13। 217 का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो हम 217 को ही 217 अपॉन 1 लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन 270। इसी तरीके से रेसिप्रोकल ऑफ 1 होल 1 बाई 2, तो पहले इसको चेंज करते हैं, 2 1 2 प्लस 1, ये हो गया 3 बाई 2। और इसका रेसिप्रोकल क्या है, उल्टा करना है तो 2 बाई 3। ठीक, दिस इज द आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिविजन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है कि 1 बाई 2 को डिवाइड करना है 1 बाई 3 से। तो हम पहले टर्म को वैसे ही लिखेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल बनाएंगे और इस फ्रैक्शन का उल्टा कर देंगे। तो 1 बाई 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 बाई 1, दैट इज 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, दैट इज 3 बाई 2 आंसर। सिमिलरली थर्ड पार्ट 1 डिवाइडेड बाई, जहाँ कहीं भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको सबसे पहले हमें चेंज करना है। तो 6 3 18 प्लस 2 20, 20 बाई 3, दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई 20, दैट इज, इसको हम 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 20, विच गिव्स द वैल्यू 3 बाई 20 एज आवर आंसर। So you're going to solve each part of question number 1 and 2 in your practice copy. Now we have question number 3. By what fractions should 9 by 35 be multiplied to get 7 by 15? यानी कि 9 by 35 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आए, 7 by 15 आए। तो हम क्या लिखेंगे कि मान लेते हैं वो फ्रैक्शन है x, यानी कि जब हम x को 9 by 35 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 7 by 15। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 7 by 15, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा 9 by 35 से, दैट इज 7 by 15, डिवाइड की जगह लिखेंगे मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल करेंगे विच विल गिव अस 35 by 9। नाउ 5 3s are 15 and 5 7s are 35, so we have the value 7 7s are 49 upon 9 3s are 27 as answer. This is the required fraction that we have.
So you have to solve all the questions regarding this exercise in your practice copy. And we are going to discuss one more question, that is question number 8. The area of rectangular plot of land is this much. If its breadth is this, find the length. तो हमें एरिया दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है. व्हाट इज द लेंथ? लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करेंगे. तो ये वैल्यू है एरिया की, ये वैल्यू है ब्रेथ की. डिवीजन का सिंबल लगा. इसको फ्रैक्शन को पहले चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को, और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके हम पता लगाएंगे कि लेंथ कितना है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का. सो योर वर्क इज दैट यू गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 3A and 3B in your practice copy. And on the next turn, if there is a doubt with this chapter, we will discuss it. Plus, if you do not have any doubt, then we are going to start with a new chapter. See, this chapter is very easy. Chapter 3 में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है. रैशनल नंबर वाले चैप्टर में या फिर इंटीजर्स वाले चैप्टर में वही सारी चीजें हैं. आपको सिर्फ करना क्या है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. अलॉन्ग विद दैट कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, तो आपको उसका स्टेटमेंट बनाना सीखना है. ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और अगर कोई ऐसा डाउट है तो उसको हम अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे. थैंक यू क्लास.